Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, yeah, last class we have completed our word, okay? And our next chapter is logo. तो भाई लोगो पे जाने से पहले मुझे लगा चलो पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का हिंट आप लोगों को दे दूं. थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. Okay, just a quick revision and then we will start uh, next chapter, that is logo. Okay. So our first chapter is about computer. Our first chapter is about computer. Okay. So now what are the topics that we have to cover in this particular chapter? So the topics that we have to cover in this particular chapter is what is computer, hardware and software, working of a computer, how does the computer work, characteristic of computer, uses of computer, etc. Okay. Okay, now moving ahead. So the next thing that we have to do is, let us read the chapter first. So see, this is a computer and what this computer wants to tell us, let us find out. So this computer is saying, hi friends, welcome back. Hi friends, welcome back. Again, now you are in a new class. Let us learn some more interesting thing about computer. तो चलो भाई कंप्यूटर के बारे में कुछ नई नई चीजें पढ़ते हैं. First is what is computer? Basically, the very first question is what is computer? पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई कंप्यूटर होता क्या है. A computer is an electronic machine that takes instruction from us and gives the result after processing. A computer is what? A computer is an electronic machine that takes the instruction from us and gives the result after processing. Okay. Okay. So what is a computer? A computer is an electronic machine that takes instruction from us and gives the result after processing. See, computer is what? Computer is an electronic machine. Now, so the very first thing that we have to read is electronic. So what the word electronic stands here? Electronic means what? कि those gadget or those things that works with the help of electricity. Computer, laptop, इनको भी electricity की जरूरत होती है. Okay, now. So electronic machines means what? Electronic machines means those machines which works with the help of electricity. जैसे हमारे घर में फ्रिज होती हैं, तो टेलीविजन क्या है? जैसे टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है. सिमिलरली वॉशिंग मशीन किस पे वर्क करती है? वॉशिंग मशीन भी हमारी किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है ना. So these all are the electronic machines. So similarly computer is what? Computer is also electronic machine, and what it does, it take instruction from us. What it does, it take instruction from us and give us the result after processing. ये क्या करता है? हमसे result कब देता है हमें? After processing it gives us the result. Okay. Now next thing. Okay, so let us move ahead. Next thing what we are having next is a computer works very fast. Computer works very fast. It's true. It can do million of things in a second. Compute what it can do? It can do millions of tasks in a second. Computer can solve million of tasks in a second. It can perform different day-to-day tasks like writing letter, doing calculation, making drawing, playing music, playing videos, and many more. So we can do lots and lots of tasks on computer, जैसे कि writing letter, doing calculation, making drawing, playing music. So these all work we can do on computer. Computer पे हम ये सारी चीजें we can do it very easily. Computer पे these all things we can do very easily. Okay. Now है ना, कंप्यूटर पे हम गेम भी खेलते हैं. देखो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वो भी हम किस पे अटेंड कर रहे हैं? वो भी हम कंप्यूटर पे ही अटेंड कर रहे हैं. अब और हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं कंप्यूटर पे, ड्राइंग भी कर सकते हैं. अभी हम लोग एमएस पेंट जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैम आपको कंप्यूटर पे ही तो ड्राइंग करके दिखा रहे थे ना बेटा. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस अपडेट योर नॉलेज. नाउ
A computer is what? Computer is an electronic machine that accept data input and manipulate the data according to the specified rule. ठीक है, so what computer does? Computer is an electronic machine that accept data, manipulates the data according to the specified rule and produce result, input, process, output. So this process is basically known as IPO. This process is known as IPO. Input, process, output. Okay, input means what? We feed data. चलो मैम आपको करके दिखाएं, है ना? चलो मैं एक कैलकुलेटर ओपन करती हूँ. ठीक है, तो मैम ने क्या किया, मैम ने स्क्रीन पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया. अच्छा देखो, अब मैम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगी, ठीक है, मैम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो कहाँ पे होगा? जैसे मैम ने यहाँ पे 5 5 6 6 9 ये सारे क्या हैं? ये सारे मैंने इनपुट दिया. हमने इनपुट किसकी मदद से दिया? मैंने इनपुट दिया माउस की हेल्प से. सो माउस इज व्हाट? माउस इज एंड इनपुट डिवाइस. तो देखो मैंने यहाँ पे बड़ा सा नंबर लिया, अब यहाँ पे इसको मैं एक बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, एंड व्हेन आई विल प्रेस इक्वल्स टू सी व्हाट आई हैव गॉट माय आंसर हियर, है ना? मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया. करेक्ट, यू गॉट इट. ओके, नाउ सी. तो व्हाट डज इट मीन कि कंप्यूटर में क्या हुआ? मैंने पहले नंबर डाला. जब मैंने पहले नंबर डाला तो पहले वो नंबर क्या बना? जब मैंने सबसे पहले ही वो नंबर डाला तो वो नंबर बन गया इनपुट. फिर कंप्यूटर ने उसको क्या किया? फिर कंप्यूटर को पता चला कि ओ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. तो फिर कंप्यूटर ने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली हमें क्या दिया? हमें एक रिजल्ट दिया. ये मुझे क्या मिला कंप्यूटर का? कंप्यूटर का मुझे ये एक रिजल्ट मिला. गॉट इट? ओके, नाउ फाइन. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ठीक है, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इनपुट, देन प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में जितने टाइम में इसने मल्टीप्लिकेशन किया, एंड आउटपुट. देखो हमें स्क्रीन पे क्या मिल गया? हमें स्क्रीन पे इसका आउटपुट मिल गया. तो दिस इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड आवर पीडीएफ. So this process is known as input, process and output. Now next topic is hardware and software. Next topic is what? Hardware devices and software devices. The computer system is categorized mainly into two parts. So what happens? Computer system is categorized basically into two parts, and these two parts are hardware and software. These two parts are hardware devices and software devices. All the physical parts attached to a computer are called hardware. All the physical parts attached to a computer are called hardware. Okay, all the physical part of a computer are called hardware. Physical part. Now यहाँ पे एक word हमारे पास आया, physical part. So what does word physical mean here? Okay, physical mean यहाँ पे means क्या हो रहा है बेटा? Physical means वो कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं. फिजिकल मीन वो कोई भी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज जिसको हम इसे टच कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फिजिकल डिवाइस. ओके, सो ऑल द फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर का वो सारा फिजिकल पार्ट जिसको आप क्या कर सकते हो? जिसको आप जो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और जिसको आप टच कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. तो नाउ टेल मी, कंप्यूटर के वो कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो? टेल मी बेटा, कंप्यूटर के वो कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो. ओके, नाउ ठीक है. नाउ सो हार्डवेयर मीन्स व्हाट? वो सारे पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो और जो कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं. ठीक है,
माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एक्सेट्रा क्या है, इसके एक अच्छे एग्जांपल्स हैं। नाउ मूविंग अहेड, सी यहाँ पे एक कंप्यूटर की क्या बनी हो, कंप्यूटर की एक यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है ना। नाउ लेट अस कंसीडर दिस पिक्चर, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखो, फर्स्ट इज मॉनिटर। सो ठीक है, मॉनिटर क्या, मॉनिटर पे क्या होता है भाई, मॉनिटर पे हमें क्या मिलता है, मॉनिटर पे हमें किसी भी जो भी वर्क वी डू इन कंप्यूटर, हमें मॉनिटर पे क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। मॉनिटर स्क्रीन पे हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी काम होता है तो मॉनिटर पे हमें क्या मिलता है, उसका वी गेट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटर। कंप्यूटर में जो भी हमने, जैसे मैम आपको किससे पढ़ा रहे हैं, मैम आपको पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीडीएफ। मैम आपको एक पीडीएफ की हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैम आपको पीडीएफ की हेल्प से पढ़ा रहे हैं और सपोज कल को मुझे इस बुक को फिजिकल फॉर्म में चाहिए, मुझे ये बुक फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मैम अभी तो आपको इससे पढ़ा रहे हैं और मैम आपको इस सपोज मैम को इस बुक फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो मैम को क्या करना होगा, मैम को इस बुक को प्रिंट कराना होगा, मैम को क्या करना होगा, इस बुक को प्रिंट कराना होगा। ओके, नेक्स्ट इज सीपीयू। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज सीपीयू। अच्छा, व्हाट इज इन हियर इन सीपीयू, अच्छा सीपीयू इज व्हाट, सीपीयू वी कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो किसकी मदद से होती है, सीपीयू की मदद से होती है। एंड वन मोर थिंग, देखो सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये क्या, इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे गैजेट्स को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। इन सारे गैजेट्स को आप टच कर सकते हो, और इस वजह से, बिकॉज आप इन सबको टच कर सकते हो, इस वजह से इनका नाम किसमें है, दे आर द हार्डवेयर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट इज स्पीकर। अब भाई देखो, स्पीकर की मदद से व्हाट वी डू, स्पीकर की मदद से वी लिसन टू द सॉन्ग। हम क्या करते हैं, वी लिसन टू द सॉन्ग, और सॉन्ग हम सुनते हैं। देन हम और क्या करते हैं, स्पीकर की मदद से, स्पीकर की मदद से हम सॉन्ग सुनते हैं। देन कीबोर्ड है, कीबोर्ड की मदद से वी एंटर द थिंग्स हियर। कंप्यूटर में हम कोई भी चीज किसकी मदद से एंटर करते हैं, वी एंटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ओनली, है ना। एंड नाउ द नेक्स्ट इज माउस। अगला क्या है, अगला है माउस। ओके, माउस इज व्हाट, माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। माउस भी क्या है बेटा, माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ओके, तो दीज आर द वेरी कॉमन hardwares of our computer. Now I'm going to repeat that hardwares are the physical part of the computer that you can easily touch. Hardware is what? Hardware is a physical part of the computer जो कि आप क्या कर सकते हो, that you can easily touch, जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। Okay, moving ahead, next thing we are having here is software. अगली चीज जो हमें अभी यहाँ पे रीड करनी है, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगली चीज हमें यहाँ पे रीड करनी है सॉफ्टवेयर। So software is what? Software is a set of instructions. Software is what? Software is a set of instruction that tells a computer how to do a particular task. Software is what? Software is a set of instruction that tells a computer how to do a particular task. A program like MS Window, MS Paint, MS Word, etc. are example of software. These programs are example of software. These programs basically are the example of software. तो software क्या होता है, देखो। अच्छा चलो मैम आपको दिखाएं। अब देखो मैम के स्क्रीन पे, अब ये देखो कौन सा ऐप है, सी, इस ऐप को आप अच्छी तरह पहचानते हो, टीम ऐप है। एग्जैक्टली दिस इज द टीम ऐप, है ना। नाउ सी, टीम ऐप, अगर ये हमारा टीम ऐप है, नाउ सी, टीम ऐप ये हमारे कंप्यूटर के अंदर है
है ना। अब देखो टीम ऐप को मैम टच नहीं कर सकते बेटा, जैसे हम माउस को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को जिस तरह से हम टच कर सकते हैं उस तरह से हम टीम ऐप को टच नहीं कर सकते। उस तरह से हम जब टीम ऐप को टच नहीं कर सकते तो व्हाट डज इट मीन, जब हम टीम ऐप को उस तरह से टच नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ओके ना, तो व्हाट आर द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, जो कि कंप्यूटर को बताता है कैसे कोई पर्टिकुलर टास्क करना है। नाउ द प्रोग्राम्स लाइक MS Windows, MS Paint, MS Word, etc. These all are the example of software. ये सारे क्या हैं? These all are the examples of software. ये सब examples हैं software के. Okay now. Moving ahead. Next is working of a computer. Working of a computer. A computer is what? A computer is a machine that works very fast, but it cannot work on its own. Computer is what? A computer is a machine that works very fast, but it cannot work on its own. Some data has to be fed into it. It will process the data and as a result and give the relevant information. So what computer will do? See, computer जैसा मैंने बताया is an electronic machine और ये IPO पे work करता है. IPO means what? IPO means input, process and output. So that means we have to fed some data. मतलब अब कंप्यूटर मेरे बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। मेरे बिना कुछ इंस्ट्रक्ट किए कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर को क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है? कंप्यूटर की ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन माइंड की जरूरत होती है। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना कंप्यूटर इज नथिंग बट अ स्टूपिड बॉक्स। ठीक है। Now, so the question arises कि what is data, what is processing and what is output. Okay, see, we have to feed some data. हमें क्या करना होगा? कंप्यूटर में we have to feed data. What it will do? It will process the data and as a result it will give relevant information. It will, what it will do? It will give the relevant information. Now data is what? Data is a collection of raw, unorganized. Data is what? Data is what? Data is a collection of raw, unorganized fact and figure that include word, number and sound. See, one more thing. एक लाइन एक वर्ड है जिसपे हम सभी को ध्यान देना है, वो कौन सा है? That is unorganized. यहाँ पे एक वर्ड है unorganized. Now see, डेटा की डेफिनेशन इधर क्या है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर, ऑल्सो इट विल इंक्लूड बोथ फैक्ट ऑल्सो एंड फिगर्स ऑल्सो. सो डेटा विल इंक्लूड बोथ ऑफ दीज फैक्ट एंड फिगर. दैट मीन्स नंबर भी, वर्ड्स एंड साउंड्स ऑल्सो. ओके, okay, now moving ahead. See, so data includes word, number, sounds, images. So data include all of these. Data includes all of these. Word, number, sound and images. ठीक है, डेटा में ये सारी चीजें आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है
class 3A roll number 8 rupees 5000 Rahul etc. तो यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्लास 3A राहुल रोल नंबर 5000 एक्सेट्रा. नाउ सी ये क्या, यहाँ पे देखो वर्ड्स भी है, यहाँ पे हमारे पास नंबर भी है, फैक्ट एंड फिगर दोनों चीजें हैं. बट वन थिंग दैट इज मिसिंग इज दिस इंफॉर्मेशन. ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये क्या नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं है. ये इंफॉर्मेशन कैसी है, ये इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड है. दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट, this information is what, this information is unorganized. This information is basically unorganized. Okay, so let us see. नाउ डेटा पे हमने बात की कि डेटा इज व्हाट, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर. डेटा इज समथिंग unorganized fact and figure. Now we are moving toward now next thing is information. The information is what, the information is meaningful and organized form of data. देखो information भी क्या है भाई, information भी बेटा data ही है. information भी data ही है, बस only difference है, see information भी data ही है, but that data is what, that data is meaningful and organized. That data is meaningful and organized. Okay, so the meaningful and the organized form of data is termed as information. अच्छा आप देखो ऊपर यहाँ पे जो information थी क्लास 3 रोल नंबर 8 राहुल 5000. अब देखो नीचे इसे कितने प्यार अच्छे से लिखा है. अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. देखो क्या लिखा है, राहुल इज इन क्लास 3. He is in section A. Rahul's roll number is 8. His mother fees is rupees 5000. His monthly fees is rupees 5000. Okay, now moving ahead. Now see, देखो भाई राहुल इज इन क्लास 3. अब इससे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो कैसी थी, वो अनऑर्गेनाइज थी, वो ऑर्गेनाइज नहीं थी. बट यहाँ देखो इस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग हमें मिल रहा है. दैट राहुल इज इन क्लास 3. He is in section A. उसकी सेक्शन क्या है, A है. राहुल रोल नंबर इज 8. His monthly fees is rupees 5000. उसकी मंथली फीस क्या है भाई, 5000 है. तो यहाँ पे ये जो डेटा, इधर जो डेटा है वो हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म कर रहा है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, है ना. अब देखो यहाँ पे जो डेटा था वो अनऑर्गेनाइज वे में था और नीचे हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है. Now next topic is how does a computer work. Now the topic is how does a computer work. The working of a computer is based on the following principle, and the principle is input, process and output. Input, process and output. Input, process and output. Okay, now when we feed data to a computer, what we do when we feed data to a computer, it accepts the data as input through different input devices like keyboard, mouse, scanner etc. ठीक है, तो उसकी मदद से
हम क्या करते हैं, वी फिट डेटा टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम डेटा किसकी मदद से डालते हैं, किसकी मदद से हम उसमें फीड करते हैं डेटा, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। एंड व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। These all are the input devices and इनकी मदद से what we do, we feed data into a computer, ठीक है। So जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन फेड करते हैं, so we call it input, okay। now कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा फेड करते हैं तो we call it input। now next is the computer process the data। the computer, what it does, computer process the data, computer process this data and change this into information। computer process the data and change this into information with the help of what, with the help of processor, okay। so computer change this data with the help of processor and प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमने डाल दिया कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट कंप्यूटर व्हाट इट विल डू, it will process the data, it will process the data। now after processing the computer shows the final result, what it does, it shows the final result as an output through different output devices like monitor, printer and speaker etc, monitor, speaker, printer etc, ठीक है। what it does, after processing the computer shows the final result as an output through the different output devices, different output devices की मदद से वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है। नाउ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर से हमें क्या मिलता है, हमें वो स्क्रीन पे हमें रिजल्ट शो होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे इनपुट हमें करना था 6+6, ठीक है। 6+6 कीबोर्ड की मदद से हमने एंटर किया, तो प्रोसेस कंप्यूटर ने क्या किया, 6+6 को कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया। नाउ और प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस किससे किया, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। नाउ सीपीयू से प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट मिला 12। हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट मिला 12। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीयू, दैट मीन information, input, process and output, okay। okay now let us move ahead। so friend, this is how a computer works, this is known as IPO, इसी को हम क्या बोलते हैं, this is what we call IPO। now next is characteristic of computer। so as you all know, computer और human में अगर हम compare करें, if we compare between computer and human, so what will happen, computer works really very fast in comparison to human। human के comparison में computer works really fast, है ना। तो फर्स्ट इज व्हाट, कंप्यूटर में सबसे बड़ी बात जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है, ओके ठीक है। ऑल्सो कंप्यूटर में क्या होता है, उसकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होती है। कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कंप्यूटर की स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है। चलो लेट अस सी, a computer is what, is a powerful useful machine which has a very high processing speed। computer is used in many different fields because of this characteristic it possesses। let us have a look of some of these characteristics। so now we are going to look at the characteristics। first is speed, then is reliability, then versatility, then storage, multitasking, diligence। these are what, these are the characteristics, these are the characteristic of computer, okay। now kids, so today we will do up to here only, next class I will explain you these characteristics in detail,
Okay, in our next class I'll explain these characters to you in detail. Okay, so we'll meet in our next class.